Welcome everyone. Today we are discussing the topic economic reforms. Now we are studying chapter economic reforms, that is new economic policy in Indian economy, class 12th. In the last video that we shared, I talked about the first generation reforms. What are the macroeconomic stabilization reforms? Now, in the last video, as I discussed with you all, basically macroeconomic stabilization reforms are nothing but a kind of a stimulus to provide the economy so that the economy can come back. See, whenever हमें अगर फीवर होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? First thing is we do take a paracetamol, and then we go to the doctor and ask him that where did we go wrong? Were we eating something wrong? Is our throat bad or is our stomach not good? So then he gives us the exact antibiotic. So this macroeconomic reforms was basically like a paracetamol जो इकॉनमी को उस टाइम पे चाहिए था ताकि इमीडिएटली रिवाइव हो जाए. उसके बाद जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें चाहिए थे वो आते हैं सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स में, या सेकेंड फेज़ कह लो इसका, ठीक है, जिसमें हमारे पास आता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको आप कहते हो LPG पॉलिसी. सो NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में दोनों चीज़ें आती हैं. फर्स्ट जनरेशन जो इमीडिएटली उस वक्त इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए चाहिए था, एंड सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स जो हमें चाहिए था अपनी इकॉनमी के अंदर चेंजेस लाने के लिए. ओके, now coming to the second generation reforms, we're talking about liberalization first. What do you mean by the word liberalization? Liberalization का मतलब होता है freedom about doing things. That's called liberalization. Liberal, freedom of views, ठीक है, freedom in action, that's called liberalization. So under liberalization policy, government took 4 types of reforms: industrial reforms, financial reforms, fiscal reforms, and external sector reforms. So in today's video, we'll only be talking about the industrial reforms which the government undertook under liberalization. When talking about the industrial reforms as such, the industrial sector at that time when in the 1990 was not doing very good. So there were some changes that were required. Now before we move to these changes, in previous videos we have talked about the industrial policy 1956, IPR 1956, इसके अंदर हमने 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी, 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी, सॉरी. फर्स्ट हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, दूसरा हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने कैटेगराइज किया था इंडस्ट्रीज़ को इनटू कैटेगरी A, B एंड C, एंड थर्ड हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स या सॉप्स जिसको हम कहते हैं, और एक और बाइफिकेशन था उसका जिसको हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट. So industry was not doing very well. So let us see what government did to make sure that the industry did well. Talking about the first point was abolition of licensing. Now government in 1956, IPR 1956, government ने इंट्रोड्यूस किया था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जिसके अंदर हमें क्या करना पड़ता था, लाइसेंसेस प्रोवाइड करते थे हर एक इंडस्ट्री को खोलने के लिए. लाइसेंसिंग प्रोवाइड करने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ देना, एवरी डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी डिपॉजिटेड. तो काफ़ी जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते थे ना, दे नेवर यूज टू गो फॉर लाइसेंसिंग. तो वो कहते थे छोड़ो क्या करना है हमें इंडस्ट्री में जाकर, जब इतनी फॉर्मेलिटीज़ हैं. तो गवर्नमेंट को ये बात समझ में आ गई 1990 में. तो गवर्नमेंट ने कहा वी विल डू अवे विद द लाइसेंसिंग पार्ट. हर जगह ज़रूरी नहीं है लाइसेंसिंग, कुछ एरियाज़ में ज़रूरी है बट नॉट इन एवरीथिंग. So government abolished the industrial licensing policy. Second, curtailment of public sector. Now what is this public sector? Public sector होता है government's expenditure. गवर्नमेंट बहुत सारा एक्सपेंडिचर करती है. When we talk about government's expenditure, तो उसमें क्या क्या आता है हमारे पास? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में 2 चीज़ें आती हैं हमारे पास. एक हमारे पास आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक हमारे पास आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो हमारे पास आ गया कि भाई क्या क्या हमारे अच्छी बात थी और क्या क्या हमारी बुरी बातें थी, है ना. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने एसेट्स बिल्डअप कर लिए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर. लाइबिलिटी को हमने ख़त्म कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है. लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट के पास आता है सैलरी, सब्सिडी. अब एज यू ऑल नो दैट इन IPR 1956 गवर्नमेंट ने क्या किया था, कैटेगराइज करी थी इंडस्ट्रीज इंटू A, B and C. A reserved only for the government sector, B reserved for both government and private, and C reserved only for the private sector. तो मेजॉरिटी का जो इंडस्ट्रीज़ थी वो A में थी. जब सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली सैलरी भी गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा दे रही है, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है. दैट मीन्स
पब्लिक सेक्टर का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट हैड टू रिड्यूस दैट एक्सपेंडिचर, इसे गवर्नमेंट को कम करना है, कर्टेलमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर, ठीक है। थर्ड पॉइंट होता है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन कैपेसिटी? लेट अस सी व्हाट इज प्रोडक्शन कैपेसिटी। नाउ सपोज वी हैव अ मशीनरी, नाउ दिस मशीन that we have can produce 1000 units of something, 1000 units of output. ये क्या है 1000? इसकी कैपेसिटी है, लेकिन क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है, हमें लग रहा है कि हमारी कॉस्ट कम पड़ेगी या कुछ होगा, तो हम सिर्फ 800 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है 200 यूनिट का, ये गवर्नमेंट ने कहा इसको ज़रूर प्रोड्यूस करिए। गवर्नमेंट ने कहा अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करो, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उतना बहुत नहीं है, आपको मैक्सिमम कैपेसिटी तक प्रोड्यूस करना है, ताकि जो 200 आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करोगे, जिसकी डिमांड हमारी कंट्री में नहीं है, लेकिन ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, फिर एक्सपोर्ट हो जाएंगी। एक्सपोर्ट होंगी तो गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने कहा एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है हमें वहाँ तक प्रोड्यूस करना चाहिए। लास्ट पॉइंट, MRTP लिबरलाइजेशन। MRTP का मतलब होता है मोनोपोलीज, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। मोनोपोलीज, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसके अंदर क्या आता है? MRTP का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने ये एक्ट एक्चुअली लाए थे गवर्नमेंट 1969 में। तो तब गवर्नमेंट ने ये बोला था दैट MRTP इसलिए लाया था कि मोनोपोलीज क्रिएट ना हो सकें, बहुत सारे रेगुलेशंस थे इसके अंदर, ताकि मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्ट हो जाएं, ठीक है। तब उस टाइम पे ना सब जो बहुत ज़्यादा रिच बिजनेस हाउसेस हैं सिर्फ वही बिज़नेस में एंटर कर रहे थे, इंडस्ट्री में एंटर कर रहे थे, स्मॉल इंटरप्राइजेज एंटर नहीं कर रहे थे। तो वो लोगों की एक मोनोपोली हो गई थी, जब मोनोपोली हो गई थी तो अपनी मर्जी का प्राइस चार्ज कर रहे थे। तो इसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने MRTP एक्ट लाए थे। लेकिन अब गवर्नमेंट को लगा कि अगर हम उसको लिबरलाइज नहीं करते तो बाकी कोई एंटर करेगा ही नहीं, इसमें बहुत सारे रूल्स थे, बहुत सारे नॉर्म्स थे। तो गवर्नमेंट ने MRTP लिबरलाइज़ करा, और 2 चीज़ों में लिबरलाइज़ करा। एबोलिशन ऑफ थ्रेशहोल्ड लिमिट। थ्रेशहोल्ड लिमिट जो मैक्सिमम लिमिट एक मार्केट शेयर की एक इंडस्ट्री में हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कह दिया कोई इंडस्ट्री है, पेन्स इंडस्ट्री है, तो इसके अंदर पार्कर की जो है मार्केट शेयर इज़ 90% सपोज, तो ये क्या है, ये थ्रेशहोल्ड लिमिट है, इसके ऊपर अगर गया तो वो MRTP के अंडर आ जाएगा और उसको फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने ये लिमिट ख़त्म कर दी कि अब ऐसी कोई लिमिट नहीं है 90% 80% वाली। सेकेंड, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा देयर इज़ नो नीड फॉर अ न्यू लाइसेंस फॉर एक्सपेंशन। अगर एक इंडस्ट्री अभी कभी चल रही है मुंबई में एंड दे वांट टू एक्सपैंड देयर बिजनेस इन दिल्ली, तो दे यूज्ड टू नीड अ न्यू लाइसेंस पहले, लेकिन 1990 के बाद नाउ देयर वाज नो नीड फॉर अ न्यू लाइसेंस, पुराना लाइसेंस पे काम चल जाएगा। तो ये था MRTP लिबरलाइजेशन। दिस एक्ट वॉज पास्ड इन 1969 एंड इन 1990 इट वॉज लिबरेटेड एंड इन 2002 इट वॉज डन अवे विथ। नाउ वी हैव द कॉम्पिटिशन एक्ट, राइट। सो दीज आर द इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स which were undertaken under liberalization policy, that is the second generation reforms structural adjustment program.